ہے بن حریث؟ یہ کیسا شور ہے؟ یا امیر، یا امیر، یہ ان کوفہ والوں کا شور ہے جو حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کر دو، کسی بھی قیمت پر حسین کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح سے دوسرا رخ نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حسین عراق کی حکومت سے بہت زیادہ بے فکر نہیں تھے۔ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے، تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے۔ آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ کیا میرے سینگ ہیں یا دم؟ نہیں نہیں، میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان؟ پورا کوفہ حسین کا طالب ہے۔ میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا؟ جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا۔ اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے۔ تعجب ہے، تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی؟ میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا۔ مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے؟ کوفے میں شیعہ اقلیت میں ہے، جب تک یہ لوگ اقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہے۔ یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے؟ ہاں، میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے۔ معاویہ مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ ہاں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلک میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں۔ خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہت خوب بڈھے سیاستدان۔ مسلم کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے۔ سنا ہے اس نے۔ تم کوفے کے حاکم تھے،
तुम्हें देखना चाहिए था। इसी वजह से कूफे की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ और आप देखने पर कुदरत रखते हैं। वाकई मजाक तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, ये बात मेरा दिल जानता है। और फिर जो आप हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं, यही आपकी अक्लमंदी और होशियारी की बहुत बड़ी दलील है। कूफा हमेशा से रिंद लोगों के आगे झुका रहा है और बेशक आपकी सियासत इंतहाई रश्कावर है। मैं बेजा तारीफ और खुशामद को पसंद नहीं करता नौमान। मुझे शक नहीं है कि तुम खलीफा के वफादार हो, मगर कूफा के बिल्कुल उल्टे हालात नादानियों का सबब है। मुझे कूफा पर मुसल्लत होने के लिए बावसूख खबरें चाहिए। महल में रहिएगा, मुझे मुशीर की जरूरत है। जा सकते हैं। आपसे मशवरा करने के लिए मेरी जबान बेकार है। आपको मुझ जैसे शख्स से मशवरे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तुम नहीं चाहते कि जो बकवास माहौल तुमने बना रखा है इसकी तलाफी में मेरी मदद करो? ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बेहुदा मुशीर से मशवरा लेना सिर्फ वक्त जाया करना और बेहूदगी है। एक मासूल हाकिम होना मेरी नजर में ज्यादा इज्जतदार रास्ता है बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं। मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फो करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सक़फ़ी से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली। तो फिर कुछ देखा? नहीं। फिर बागी ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हाथ कट जाए अबू लहब के जो रसूल अल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है तो बिलादरेख उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बारात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहां जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई है। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिन रईस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूं जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। यह आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे? क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाँ ये रास्ता तो गलत था।
जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा, उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया, और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीउ फरमाबरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा यह कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस, नहीं, हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नुमान, यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। नोमान जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था। वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुर्तों के अमीर हो? था, आज के बाद से आपकी रकात में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नौमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन हुरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है। नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो, करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नौमान का अंजाम देखा तुमने? नौमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नर्म दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह। क्या आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए। अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। जो हुक्म आपका। उम्र साद हाथ से ना निकले। सुसड़ ना हुआ, बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार। मैंने नजूमियों से सुना है कि नहर से असगर नहर से अकबर बन गया है। ये रसूल खुदा की वही पेश गोई है। इजा ज़हरतिल बिदअउ फी उम्मती, बिदअत का ज़हूर हो चुका है।
एक हौलनाक बिदअत। मैं उस हुसैन इब्न अली के फितने की मंतक नहीं समझ पाया, वो भी उस खलीफा के दौर में जो शायरों और अदीबों का खातिम है और दीन मुस्तफा का जेवर और जीनत है। अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो मुझे आगाह कीजिए कि मैं जाहिल ना मरूं। हुसैन रसूल खुदा का नवासा है, उसकी हुर्मत अपनी जगह। क्या रसूल खुदा से रिश्तेदारी और कराबतदारी किसी बैत शिकनी का जवाज है? अबू लहब भी पैगंबर का चच्चा था, नूह का बेटा भी नबी का बेटा था, मगर ये दोनों किताब खुदा में मग़ज़ूब इलाही और नफरत से मुखातिब किए गए हैं। इराक़ अरब पर हुसैन की हुकूमत यानी उसके बाप अली की हुकूमत का अंदाज। मैं यहां मौजूद बुजुर्गों से पूछता हूं, मीरासे हुकूमत अली क्या थी सिवाय रसूल खुदा की उम्मत के टुकड़े होने के? अभी तक कूफा अली के जमाने में खाए हुए जख्मों का दर्द उठा रहा है। अभी तक अली की भाई भाई की जंगों का दाग ताजा है। बिदअतियान कूफा ने दिल जले खलीफा के साथ क्या क्या बुरा सलूक किया। इतना सब्र नहीं किया कि यह नौजवान खलीफा अपने बाप के अजीम शोक से फारिग हो सके। क्या यही है बैत की इज्जत? क्या यही बदला है खिदमात खलीफा मुआविया इब्न अबू सुफियान का? या सैयदी सिब्तुन नबी अहलन व सहलन। तुफ हो इतनी नाकदरी पर, तुफ हो इतनी वादा खिलाफी पर, तुफ हो इस कदर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने और खयानत पर। थोड़ी सी मोहलत देता हूं ताकि खताकार तौबा कर लें। कसम बाखुदा कूफियों की नाफरमानी की खबर ने अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया को इतना गुस्सा दिलाया है कि उन्होंने हुक्म दिया है कि रोमी तोपों और मंजनीकों से कूफा को जमीन दोज कर दें। मैंने राय की खिलाफ वर्जी की। अमीर को लिखा, या अमीर, कूफा रूम नहीं है। कूफा मलहिदों, मुशरिकों और काफिरों का शहर नहीं है। कूफा खुदा की फौजों का शहर है, महबूस पर फतह करने वालों का शहर है, कसरा पर गालिब होने वालों का शहर है। मगर खलीफा ने एक अजीम लश्कर इराक़ अरब की तरफ भेजा है जो अनकरीब यहां आने वाला है। मैं इब्न ज़ियाद फातिह खुरासान अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया से वादा कर चुका हूं कि बिदअतियों की जड़ें खुश्क कर दूंगा और खुश्क कर दूंगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने बसरा में किया। जुबान नसीहत समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मेरी जबान ताजियाने और तलवार की है, सूली की लकड़ी और गुलो जंजीर। बैत तोड़ने वाले चाहे किसी भी कौम कबीले के हों, उनकी जान, माल और नामूस हम पर हलाल हैं। आप लोगों में मौजूद हर कौम के बुजुर्गान बैत तोड़ने वालों के नामो निशान लिखें, क्योंकि अगर कोई बैत तोड़ने वाला पकड़ा गया और उसका नाम उसके कबीले के बड़े ने ना लिखा हो तो वो बड़ा मुजरिम है। खुदा की कसम, उस ज़ईम को उसके घर के सामने सूली पर चढ़ा दूंगा। ए कूफा के मुर्दा और हैरत ज़दा लोगों, अब कौन सी मुसीबत आ गई है कि तुम लोगों के मुंह हैरत से खुले हुए और तुम्हारी जुबानें तुम्हारे मुंह में चिपकी हुई हैं? फिर तुम लोग सुमुम बुकमुन उम्युन के मुस्ताक बन गए हो। क्या ये रवा है कि मरजाना का बेटा खाना खुदा के मिंबर पर रजस खानी करे और कोई उस पर एतराज न करे? क्या खाना खुदा का मिंबर चिंगारने की जगह है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि रूमी तोपों और मंजनीक और शाम के अजीम लश्कर से डर के आप लोगों ने अपना दीन बेच दिया है और अपने मुंह पर मोहर लगा ली है और अपने कानों को दरवाजा बना लिया है। पहली बात तो यह है कि लश्कर शाम एक धोखा है, झूठ है, सच नहीं है। यजीद ने कूफे की तरफ कोई लश्कर भेजा है? बहुत खूब, भेजा हो। किसी इराकी को लश्कर शाम से क्या डरना? इराकी ने तो बारहा शामी से पंजा आजमाई की है और गालिब रहा है। मरजाना के बेटे ने मौला हुसैन को अबू लहब और जनाबे नूह के बेटे से मिला दिया, जो कि दोनों के दोनों कुरान में मखदूब इलाही हैं, मगर उसके मुंह में खाक हो कि सुन्नत पैगंबर और अहादीस नबवी से कोई बात नहीं की। ऐ उलमाए दीन, कारियान कुरान, साहब रसूल जो खुद उनको देख चुके हो और रसूलुल्लाह के अमल और सुखन के ऐनी शाहिद रहे हो, क्या रसूल खुदा ने नहीं फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है कि अगर उसमें दाखिल हो जाओ तो महफूज हो और अगर उसे पीठ दिखाई तो हलाक हो जाओगे। इस शख्स को जानते हो बिन हुरैस? यही फरमाया है। जी हाँ अमीर, एक बेकबा खजूर बेचने वाला है, नीशम तम्मार के नाम से मशहूर है। अली की पैर चूमने वाले साथियों में से है। शराबी को खिलाफत पर तो फिर वो शियों के मोटी गर्दन वाले बड़े लोग किस कब्रिस्तान में मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि एक खजूर बेचने वाला मैदान में उतर आया है? अबू लहब और जनाबे मुझे तवक्को थी कि खान इब्न उर्वा या सुलेमान सुर्द खुजाई मैदान में आता, ना कि ये बेसरुपा खजूर फरोश। उसके हाथ पांव बांधकर दारुल हुकूमत ले आओ। जी अमीर। जो वही की ताबीर और तफसीर कर सकते हो, आवाम को बिदतों का असली चेहरा क्यों नहीं दिखाते तुम लोग? यजीद की बैत तोड़ने वाले बिदती हैं या वो जिन्होंने यजीद की तरफ बैत का हाथ बढ़ा दिया है? मैं भी मरजाना के बेटे की बात से मुत्तफिक हूं कि बिदत ज़हूर कर चुकी है। बिदत वो जुआ खेलने वाला है जिसका गमखार शराब का प्याला है। बिदत वो हवसरानी करने वाला है जिसकी इबादत ज़ना है। मत करो। बिदत वो कातिल है जो शेखैन के तरीके की भी परवाह नहीं करता। बंद करो। बिदत वो हवसबाज है जिसकी नमाज सिर्फ हवसरानी है। तमाम मुरीदान अली क्या ऐसी हुलिये के हैं? इसकी धूल मिट्टी साफ करके और मुंह से मक्खी उड़ा के इसे दारुल हुकूमत ले आते। कितने अरसे से तुम्हारे जिस्म को पानी नहीं मिला खजूर फरोश? क्या तुम लोग गुस्ल नहीं करते? पहली बात तो ये कि खाक पाक करने वाली चीजों में से है और तहारत कर सकती है। दूसरी बात यह कि मक्खी और मच्छर इस जहां में मेरा खून चूस लें, ये कहीं बेहतर है बनिस्बत ये कि ये जिस्म कब्र में सांप और बिच्छू की खुराक हो जाए। तीसरी ये कि ये हरामजादे की खासियत होती है कि वो तहकीर और तोहमत के सहारे अपने दुश्मनों को तकलीफ दे, वरना ना तो मैं खाक आलूदा हूं और ना कोई मक्खी मच्छर मेरे साथ है। बदतमीज! वो बहुत कमजोर है अमीर। ये बुढ़ा वैसे ही मरने के करीब है। इसने अपनी रोटी खा ली है और कपड़े फाड़े हुए हैं। इससे बहस करना सिर्फ आपको तकलीफ देगा। हैफ है कि आप इस जैसे कमजोर से लड़ें। उससे एक दर्दनाक तरीके से मारूंगा। ले जाओ, इसके हलक से जबान खींच लो और एक खजूर के पेड़ की टहनी पर लटका दो ताकि सारी खलकत इसे मुंह के पानी से गुस्ल दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुदा की कसम मैं जानता था कि तुम क्या करोगे। मैंने अपनी मौत की कैफियत बहुत पहले अपने मौला अली की जुबान मुबारक से सुनी थी। अली? तुमने अली से क्या सुना है बुड्ढे? मेरी मौत की दास्तान। मौला अली ने फरमाया था, मैसम,
तुम एक बदकार औरत के बेटे के हाथों कत्ल किए जाओगे कि तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें उसी दरख्त पर सूली पर चढ़ाएगा जिससे तुम रोजी खाते हो। ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मैं तुम्हें इसके झूठ का अभी सबूत देता हूं बुड्ढे। तुम्हें ऐसा कत्ल करूंगा कि अली की पेशन गोई के बिल्कुल मुशाबे ना हो। बिन उरैस, जी अमीर। उसे ऐसी कौल कोठड़ी में डाल दो कि हशरातुल अर्ज उसके बदन का गोश्त खा ले। तुम खुद अली की सच्चाई से वाकिफ हो, फिर बेहुदा बातें मत करो। कसम खुदाए ला शरीक, मैंने हरगिज अली से सिवाय हुज्जत और हकीकत के कोई और नहीं सुना। बिन उरैस, इसका मुंह बंद करो और इसे मेरी आंखों से दूर करो। सिपाहियों जल्दी! रुखसत चाहता हूं अमीर। कहाँ इब्ने साद? अमीर से इजाजत तलब करके मैं हुकूमती मकाम मुनसब छोड़कर कोई मुनासिब काम ढूंढने जा रहा हूं। मसलन कौन सा काम? मसलन खेती बाड़ी, सनतकारी या कोई तिजारत। चरवाहे का काम भी बुरा नहीं है। जानते हो, ज्यादातर नबी मबूस होने से पहले चरवाहे थे। चरवाहे बन जाओ, शायद तुम भी नबूवत पर मबूस हो जाओ। मैं तो अंबिया के सिलसिले के खत्म होने पर अब तक शक करता हूं। ये लोग अब भी मुर्शिद और मुरसल चाहते हैं जो उनकी हिदायत करे। ऐसा क्या हुआ जो अपना काम बदलने का फैसला कर लिया तुमने? जब एक आम सा बूरिया और टाट पहनने वाला खजूर फरोश एक कुदरतमंद अमीर के दिल में दर्द पैदा करके उसे अपनी मसनद पर लिटा सकता है, तो फिर यह मसनद एक लरसने वाली मसनद है। जब आपको वीरान कर दे तो फिर हम निचले तबके वालों पर तो वाय है। ए पिसर साद, ये तख्त हौलनाक तूफानों से भी नहीं लरस सकता अगर इस पर सवार होने वाला एक चालबाज और मक्कार इंसान हो। तो फिर आप क्यों ठंडे पड़ गए? मैंने चाहा मश्क कर लूं। अब आपको रुखसत दी, रुखसत दी। जा सकते हैं, जा सकते हैं आप। ये बोरिया पहनने वाला मौत का मुश्ताक मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि इन जैसों के साथ क्या करना चाहिए। हमें गम अंधों की मशक करनी होगी ताकि बवक्त जरूरत हम लोग हैरान और परेशान ना रह जाएं। कभी कभार आंसू के एक कतरे से रियाया के दिलों को मुसख्खर किया जा सकता है। ए इब्ने साद, हुकूमत रे के लिए तैयार हो? हुकूमती रे? हाँ, हुकूमत रे। मैं जहांबाजी के लिए तैयार हूं, चाहे मुल्क रे की हुकूमत हो, चाहे अमीर की रकाब में नौकरी हो। ईरान को अबू उबैद ने फतह किया और उसकी शोहरत साद अबी वकास को मिल गई। जब साद खड़ा हो गया तो मैंने अपनी तलवार को चूमा और गिलाफ में रख लिया। उस दिन तक जब हम अली इमरान के साथ जंगे जमल के लिए निकले। जंगे जमल में हमने मालिके अश्तर नखई के साथ मिलकर लाल बालों वाले ऊंट के साथ वही काम किया जो अबू उबैद सकाफी ने
ईरानी हाथी के साथ किया। दीन सैयदुल मुरसलीन आजकल फिर तुम जैसों की तलवार का मोहताज है शेख। यजीद हराम पीते हुए सैयदों की आबा पहनता है ताकि अहले बैत सादात और उनके मुखलिस साथियों की तौहीन कर सके। यजीद अरब की उसी मारूफ खातून का तुखन है जिसने हजरत हमजा का सीना चाक करके उनका जिगर चबाया। हम इरियाची हजरात इर्स व मीरास से खूनी पर यकीन रखते हैं। जिगर ख्वार हिंदा से तो यजीद जैसा बदकार ही आ सकता है। खुदा हमें अपनी पनाह में रखे। इरिया की कौम का नारा गैरत, शरफ और मर्दानगी है। मुख्तार, अगर जंग का इरादा है तो फिर हमारे साथ भी जल्दी से मामला करो। खुदा तुम्हारा भला करे अबू जाकिर। मैं अपने लिए बैत नहीं मांग रहा, मैं हुसैन इब्ने अली के लिए बैत लेने के लिए आया हूँ। हम मौला हुसैन के नौकर हैं। मुझे नहीं लगता कि हुसैन इराकियों के साथ कुशादा रोई से पेश आएंगे, खास तौर पर इतनी बेगैरती के बाद जो उनके वालिद और भाई के हक में की गई। जीत तो मौला हुसैन की ही है जब मुख्तार उनके पास हो। हाथ बढ़ाओ मुख्तार। मोहम्मद का खुदा गवाह है कि ये बैत सिर्फ अबू जाकिर की मौत से ही बातिल हुई। रे पर तसल्लुत हासिल करने के लिए राहें इतनी भी हमवार नहीं हैं। रे कूफा की तरह एक बेसुकून सरजमीन है। नौजवान खलीफा के मुखालफिन रे में सर उठाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्द तकरीबन 10,000 अरब जंगजुओं के लश्कर को लेकर रे की जानिब निकलना होगा। खलीफा ने मेरी राय मांगी, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। मुझे खलीफा के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। हुकूमत रे मेरी बहुत पुरानी आरजू रही है। आप मुतमईन रहिएगा, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर काम शुरू कर दो। लश्करियों के खर्चे मेरे जिम्मे और लश्कर तैयार करना तुम्हारे जिम्मे। कूफा के तमाम मुत्तहिद और मवाफिक कबीलों से बात करो, उनके तलवार बाजों को जहाद की दावत दो। उनके वाजिबात और सरकारी अदायगियों के बारे में कोई भी बात मत करना। क्या सोच रहे हो उमर? मुख्तार सक़फ़ी के बारे में। वो एक मुश्किल रकीब है और कबाइल के दरमियान असर नफूज रखता है। डर है हमारे तमाम मंसूबे खराब ना कर दे। मुख्तार तुम्हारा बहनोई है। काश ना होता। मैं उसके सर को उसके तन पर नहीं देखना चाहता। उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी मुख्तार को मार दूं? हुकूमत रह के बदले कैसा रहेगा? मुख्तार को मारना एक दुश्वार काम है। अपनी जान के बारे में डर रहा हूँ। मुख्तार के फिदाई बहुत से लोग हैं, बिला शक इसके कातिल का क़िसास लेंगे। तुम उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल सकते हो। मुसिर है कि मुख्तार मारा जाए। मुख्तार के जिंदा रहने से कूफे का हंगामा थमने वाला नहीं, मगर ये जबरदस्ती नहीं कि तुम इसे मारो। अगर मुख्तार के होते हुए तुम लश्कर बना सकते हो तो कोई मसला नहीं। घोड़ा और मैदान सामने है। जाओ देखते हैं क्या करते हो तुम। मुझे पता था कि यजीद के आने से इस दियार के मामलात उलझ कर रह जाएंगे। मुआविया ने 100 साल की जितनी मेहनत की है कि इन विरासतों को इधर से उधर करे, उसे सारे हरबे आते थे। उसने अपने मुंह के निवाले को चबाकर ऐसे यजीद के मुंह में डाल दिया है कि वो बासानी उसे चबा ले। उसका गला दबा देंगे अबल हदीद। कुछ ऐसा करें कि ये लुकमा उसके गले का फंदा बन जाए। किस तरकीब से अबू इसाक, किस तरकीब से? हिजाज से लेकर फारस के खुरासान तक यजीद के कब्जे में है। उन कूफियों के भोंकने की मदद से जो गोश्त के टुकड़े से छुप हो जाते हैं। तुम उनके साथ मिलकर चाहते हो कि उस सुल्तान को शिकस्त दो जो आधे आलम खाकी पर खुदाई कर रहा है। इसका मतलब है मैं गलत जगह आ गया हूँ। जिस अबल हदीद को मैं जानता था वो तवक्कल का पहाड़ था और नाउमीदी उसके लिए कुफ्र थी। क्या करूं मगफूर बाप के बेटे? क्या मुक्के मारूं सिल पर? मारो। तुम्हारा मुक्का बट्टे का काम करेगा कि शायद इसी तरह तुम मैदान में उतरो जैसा मौला अली के पास कभी खिदमत में रहा करते थे। मैं भूल नहीं सकता कि तुम किस तरह जंगे से फैन में शामी सिपाहियों पर हमला करते थे और दुश्मन को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते चले जाते थे। इतने सारे जहाद का अंजाम क्या हुआ? उमरों आस ने कुरान नेज़ों पर उठवा लिए और कूफे की गधों की औलाद लोगों ने मौला अली को काफिर ठहरा दिया और उनकी गर्दन पर तलवार रख दी।
मेरी और मेरे कबीले की बैत से कम बनता है तो ये मेरा हाथ और ये मेरी शरग हाजिर है। कूफे वाले आधे राह के साथी हैं मुख्तार। बेकार में फर्जंद रसूल को इराक बुलाकर दरबदर मत करो तुम लोग। मैं मौला हुसैन की कूफा आमद से मुवाफिक नहीं था अबल हदीद, मगर मेरी मुखालफत से कुछ नहीं हुआ। मौला हुसैन कूफे का आज़म कर चुके हैं। अगर तुम्हारी गैरत राजी है कि तुम फर्जंद रसूल का साथ नहीं दो तो मत दो, मैं तुम्हें जहमत नहीं देता। मुझे तुम्हारी निगाहों से शर्म आती है कि मैं तुम्हें कोई मनफी जवाब दूं। खुदा की कसम, एक राई के दाने के बराबर भी इन कूफियों से मुझे उम्मीद होती तो उससे फैन के दिनों की तरह कफन पहन लेता और मौत से सौदा कर लेता। अफसोस, भेड़िए का निवाला यानी मौत के मुंह में खुद को डालना। अपने दिल के हुक्म पर मौला हुसैन की बैत की है अबल हदीद, अक्ल के हुक्म पर नहीं। जी हाँ, भेड़िए करने वाला यानी मौत। कूफे वाले गधे की औलाद हैं, आधे रास्ते के साथी हैं, वादों में बेवफा हैं, मगर तुम्हें क्या? तुम वाकिफ हो कि मौला हुसैन बरहक हैं या नहीं? मैं मौला हुसैन की हक्कानियत का मुनकिर नहीं हूँ अबू इसहाक। बहुत खूब। बरोज़ हशर अगर तुमसे पूछा जाए कि हुज्जत हक का साथ क्यों नहीं दिया था तो क्या यही जवाब दोगे जो तुमने मुझे दिया है? न तुम्हें कूफियों की कब्र में सुलाया जाएगा और न तुम्हारे अमल को कूफे वालों के अमल से नापा जाएगा। अब तुम खुद ही जानो। रुको अबू इसहाक। बैत लिए बगैर जा रहे हो? मैं तुम्हारा मशकूर हूं अबू इसहाक, मशकूर हूं। तुम सही मौके पर मेरी मदद को पहुंच गए। बहुत बुरी तरह मैं अपने आप में एक जंग में गिरफ्तार था। खुश आमदीद। क्या खबर है? यहां तक जितनी तवक्कुआत थी सब गलत साबित हुई। मरजाना का बेटा बगैर किसी इत्तला के पहुंच गया, वो भी बगैर किसी लश्कर और नकारे बजाने के। उस लिबास में आया कि सब ये समझने लगे जैसे मौला हुसैन है। उसके बाद मिंबर पर जाकर रजस्खानी की और तमाम बेअत तोड़ने वालों को सख्त तरीन शिकंजों की धमकी दी। उसका पहला शिकार मीसम तमार थे। जब मीसम को मारा जा रहा था, सारे कूफे वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इब्न ज़ियाद ने जहालत को कूफियों का डर समझ लिया है। वो बगैर लश्कर के इसलिए आया है ताकि कूफा वालों को उन्हीं के हाथों से फतह करे। सादा लो, दोस्तों से कहो कि खुदारा कूफे वालों की बातों पर कान न धरें। मीसा में तम्मार का कैद होना इस बात का गवाह है कि कूफे वाले सिर्फ हांडी के चमचे हैं। तुमने क्या किया अबू इसहाक? वही जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ के देहातियों का एक एक बाल करोड़ों बेवफा कूफियों से ज्यादा कदर कीमत रखता है। उम्र साद को हुक्म दिया है कि एक लश्कर तैयार करे रे पर हुकूमत करने के लिए। रे पर या कूफे पर? जाहिरन तो रे का ढंडूरा पीटा जा रहा है, मगर पर्दे के पीछे असल में तुम्हारा गुमान ठीक है। इब्ने मरजाना ने उम्र साद को हुकूमत रे के वसवसे से फरेब दिया है। सरअंजाम हुकूमत रे का ख्वाब व ख्याल इस आदमी को पागल बना देगा। जनाबे मुस्लिम का तो कहीं पता नहीं मिला ना उसे? अभी तक तो नहीं, मगर कुछ देर नहीं लगेगी अबू इसहाक। इब्ने मरजाना जरा सा कदम जमा ले, जनाबे मुस्लिम का भी सुराग लगा लेगा। मुझे लगता है कि इब्ने मरजाना ने इस बात पर यकीन किया हो कि जनाबे मुस्लिम कूफा में नहीं है। कैसे?
कैसे का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर ऐसा एहतमाल है कि उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। कियान, अपने दोस्तों और साथियों को यह पैगाम पहुंचा दो कि जनाब मुस्लिम का बहुत ध्यान रखें। इब्न मरजाना मक्कारी का खुदा है। ये जो लिबास हुसैन पहन कर कूफा में घुसा है, यह ऐसी चाल थी जो किसी के गुमान में नहीं होगी। मुमकिन है उसके जासूस हमारे अपनों के लिबास में हमारे हल्के में घुस आए। कहो कि जनाब मुस्लिम की इकामतगाह को तब्दील करते रहें। जनाब मुस्लिम को किसी भी घर में ज्यादा लंबे अरसे नहीं रहना चाहिए। मुख्तार से कहो कि इराक के उन कबीलों से गाफिल ना रहे जिन्होंने अब तक किसी की बैत नहीं की है। उन लोगों से ऐसे मामला तय कर लो कि वो सब वाकई किसी की तरफदारी न करें और कम से कम हमारे दुश्मनों का साथ न दें। उमर साद को हुक्म मिला है कि अरब के उन्हीं कबीलों में से बेहिसाब सोने की लालच से एक अजीम लश्कर बनाए। इलियाती लोग मुमकिन है दीन के मामले में सुस्त व काहिल हों, मगर इलियाती रस्म व रिवाज के मामले में निहायत मजबूत लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी हुर्मत को इन दिरहम व दिनार के बदले बेच डालें। मुख्तार का एक और पैगाम भी है। हम सुन रहे हैं। अबू इसहाक कुछ परेशान था। ये इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? अबू इसहाक का पैगाम क्या है? वो क्यों परेशान था? वो इस बात पर परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्कार लोग शियों के नाम से हमारे हल्के में दाखिल हो जाएं और जनाब मुस्लिम की रिहाइश गाह से बाखबर हो जाएं। उसने ये पैगाम दिया है कि जनाब मुस्लिम बारी बारी घर बदलते रहें और किसी मुअय्यन जगह पर ज्यादा अरसे न रहें। मुख्तार जाती तौर पर एक बुरी सोच रखने वाला इंसान है। उसके गुमान के मुताबिक तो हमें अपनी आंख के दीजे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी उसके ख्याल में हम इतने गए गुजरे हैं कि दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और मामला खराब हो जाने देंगे। गलत मत सोचो सुलेमान। अबू इसहाक एक दूर अंदेश शख्स है। उसका पैगाम कोई बुरा नहीं है। इब्ने ज़ियाद मक्कारी के साथ कूफे में दाखिल हुआ है। बैद नहीं है कि उसके कारिंदे किसी मक्कारी से हमारे राज से बाखबर हो जाएं। हानी जान, जनाब मुस्लिम आपके घर के अलावा कहीं भी चले जाएं, हमारा उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी एक अच्छा बहाना है। अजीज अहबाब तुम्हारी अयादत को आए और कोई शक भी ना करे। भाइयों, मुख्तार का पैगाम ये मतलब रखता है कि एहतियात करना अक्ल की निशानी है। अब जबकि क़ज़ा क़दर इलाही के तहत हम मजबूर हैं कि हम छुपे रहें, तो बेहतर है कि अपने अजीजों से भी इज्तिनाब करें और उन लोगों से जिनके बारे में कोई शक या तरदीद हो, उनसे हमारे बारे में या हमारे मामलात की रूह से बात न करें। बिन हुरैस। जी अमीर। क्या हानि वाकई बीमार है या उसने बीमारी को हमसे ना मिलने का बहाना बनाया हुआ है? वाकईतन बीमार है जनाब। मैं खुद उससे मिलने गया था। वो बुखार की सोरिश से जल रहा था। ताज्जुब है। बहुत खूब, फिर हम उसकी आदत के लिए जाएंगे। अपने दुश्मन की अयादत करने जाएंगे? बीमार की अयादत करना सुन्नत पैगंबर है और दुश्मन की अयादत करने का सवाब कई गुना ज्यादा है। तुमने सुना है इब्ने अकील? तुमने सुना उस हरामजादे का पैगाम? इब्ने मरजाना आज रात मेरी अयादत के लिए आ रहा है। खुदा की कसम, यह अयादत शैतान की अयादत है। वो आ रहा है ताकि लोगों की नजर में अपने आप को बरक और काबिल तवज्जो दिखाए। ये एक अच्छा मौका है कि हम उसके शर को खत्म कर दें। कूफे की राह मौला हुसैन के लिए हमवार करते हैं। मतलब क्या करें शेख? हालांकि अगर वो मेरे घर में मारा गया तो सारी बात मेरी गर्दन पर आ जाएगी कि मेहमान को अरब ने मार दिया। मगर मेरी तमाम इज्जत आबरू मेरे मौला हुसैन पर कुर्बान। आप इब्ने मरजाना को मार देंगे? मगर कैसे शेख? अपनी तलवार को आमादा रखकर इसी ज़ेरे ज़मीन कमरे में छुप जाएं। जब मैं पानी तलब करूं तो बाहर आकर एक कारी ज़रबत से उसका काम तमाम कर दें।
शक व तरतीब मत कीजिए जनाब मुस्लिम। अफसोस है कि इस बीमारी ने मुझे नातवा बना दिया, वरना मैं खुद ही उसकी जान ले लेता। उस मक्कारियों की जड़ का जिंदा रहना यानी उन्हीं बाजियों का दोबारा दोहराए जाना जिन्होंने जंग सिफ़ैन में मौला अली की कमर तोड़ दी थी, यानी हमारी हुकूमत हक को बर्पा करने में नाकामी। खुदा की कसम, इब्ने मरजाना कूफा आया ही इसीलिए कि कूफे को मक्तले हुसैन बना दे। अबुल फतह अपने सारे कारनामे आपके सामने भूल गया और यहाँ से चला गया। उसके दांत इस तरह लरस रहे थे कि मैं डर रहा था कि टूट ना जाएं। हनी, हनी जान, अगर अभी सोया है तो इसे मत जगाओ। इसने खुद जिद की थी कि जब आप तशरीफ ले आए तो इसे जगा दूं। हनी, हनी उठो, जनाबे अमीर आए हैं। भला दूर रहे शेख, हम दुआ करते हैं कि जल्द जल्द शिफा पा जाए। खुदा के वास्ते मत घबराओ, ए हाथ, तुम्हें खुदा का वास्ता ही ठंडे मत पड़ जाओ। पानी, कुछ पानी ला दो मुझे अबा सरत। चुके, शर्म करो, शर्म करो। वाह हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेग चलाते हो। इब्न अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों को